will be greater angle 3 plus angle 4, right? 1 plus 2 क्या हुआ? Angle A. Angle 3 plus 4, angle C. Then it will be A greater than angle C. Yes. Why BC greater than AB? It's given that AB is the smallest side. तो definitely पूरे आपके quadrilateral में given है कि AB सबसे smallest है. So if AB is the smallest, so definitely it will be greater, smaller than BC also, right? Any other question? Okay. So other part is also same. Exactly same, right? Let's move to that. If you will be having any query, it will be cleared there. Again, you have given a quadrilateral ABCD, where AB is the smallest and CD is the longest side. Here we are to prove angle B greater than angle D. That we are to prove, right? Okay. Then अब हम B और D को join कर देते हैं. 2 triangles बन गई. Okay. ठीक है. इसमें नेम दे दो. We have used 1 2 3 4. Let's take 5 6 7 and 8. ठीक है. Same. Let's take this triangle. ठीक है. अगर आप ये ट्राइंगल लेते हैं तो सी ए बी सबसे स्मॉलर है तो ए बी एडी से भी स्मॉलर है. एडी इज ग्रेटर देन ए बी, राइट? ओके. सो एडी इज ग्रेटर देन ए बी, देन एडी का ऑपोजिट एंगल 5 will be greater than opposite angle of AB, that is 8. So this is 1. In this triangle CD is the longest, सबसे greater है. CD अगर सबसे greater है तो CD BC से भी greater है इस triangle में. तो CD का opposite angle 6 greater than BC opposite angle 7, and say this is second. Add 1 and 2. 5 plus 6, left hand side will be added to left hand side, greater than right hand side will be added to right hand side. 7 plus 8. 5 plus 6 means angle B, greater than 7 plus 8 means angle D, and that was to prove. Is there any query here? Okay, great. That's good. Let's move to the next question then. How to write down these kind of questions like given to prove? I will definitely send you. Okay. Question number 5. Let's move to question number 5. We have given a triangle PQR and this S is given, this PS bisects angle by angle QPR. QPR ये एंगल है, ठीक है. PS इसको बाइसेक्ट कर रही है, that means PS is dividing it equally. So that means 1 is equal to 2, right? PS divide कर रही है एंगल P को, so we can write down here angle 1 equal to 2, ठीक है. Then prove that angle PSR given क्या है आपके पास. If you write given क्या है आपके पास? Angle 1 PR is greater than PQ, PR is greater than PQ, and angle 1 is equal to angle 2, right? Next, what you are to prove here? आपको prove क्या करना है? आपको प्रूव करना है एंगल PSR. PSR, see this is angle this 3, ठीक है, is greater than angle P
SQ. See this 4. Here you are to prove angle 3 greater than angle 4. Here we have given PR greater than PQ, angle 1 equal to 2 SPS bisects angle P, and you are to prove angle 3 is greater than angle 4. Right here. So, how to do this? So, here, let's use this given. What we have given, हम उसे use करेंगे. Proof PR is greater than PQ in the triangle. तो PR अगर PQ से ग्रेटर है दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल ऑफ PR. अच्छा, ऑपोजिट एंगल PR का क्या है? एंगल Q. ठीक है, आप इसे नेम भी दे सकते हैं 5 एंड 6. ठीक है, PR का ऑपोजिट एंगल हो गया 5, ग्रेटर हो गया PQ के ऑपोजिट एंगल 6 से. राइट, PR ग्रेटर है PQ से, तो PR का जो ऑपोजिट एंगल है दैट विल बी ग्रेटर देन. Keep yourself mute, please. Nishtha. Okay, so PR is greater than PQ, तो PR का ऑपोजिट एंगल है 5, वो ग्रेटर हो जाएगा PQ के ऑपोजिट एंगल 6 से. ठीक है, नाउ 1 और 2 इक्वल है. राइट, एक काम करो, 5 में 1 ऐड कर दो और 6 में 2 ऐड कर दो. ठीक है, बात तो एक ही है ना. 5 में हमने ऐड कर दिया 1, 6 में ऐड कर दिया 2, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है तो कर देंगे ऐड. इट विल, द रिजल्ट विल स्टिल सेम. अब 5 plus 1, यूज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हियर. 5 plus 1 क्या हो जाएगा? 3 के इक्वल. ग्रेटर देन 6 plus 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल. यू कैन सी हियर एंगल जो 3 है दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ 1 and 5. तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 3 विल बी इक्वल टू 1 plus 5 और 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 plus 6. एंड दैट वाज टू प्रूव. सो सिंपल. I'm again repeating, PR ग्रेटर है PQ से, तो PR का ऑपोजिट एंगल 5 ग्रेटर हो गया PQ के ऑपोजिट एंगल 6 से. फिर हमने दो, एक में 1 ऐड कर दिया, 5 में, 6 में 2, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, तब भी वो ग्रेटर ही रहेगा क्योंकि हमने इक्वल ऐड किया है. 5 plus 1 को हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 एक्सटीरियर एंगल है तो इक्वल हो जाएगा 5 plus 1 के, और 6 plus 2 को लिख सकते हैं 4. Right, so that means angle 3 is greater than angle 4, and that was to prove. Yes, is there any query here now in this question? Vanshchen, do you want to ask anything? Okay, then let's move to the next question. Sixth question is so easy. Okay, Vansh. Sixth question is so easy that you have done earlier also. Okay. So the question number 6 is show that all line segments drawn from a given point not on it. Listen the question carefully. Show that all line segments drawn from a given point not on it. Okay, this is a line given here and take a point here and show that all line segments drawn from a given point. This is the given point. इस point से आप जो भी line segments लेते हो not on it. ठीक है, the perpendicular line segment is the shortest. अगर आप इससे perpendicular लेते हो, इस पॉइंट से perpendicular लेते हो opposite line पे, तो आपको बताना है that perpendicular will be the shortest. ठीक है, again show that of all line segments drawn from a given point not on it. इस पॉइंट से हमने अगर line segments लेते हैं like this, so many line segments we can take to the line opposite line. ठीक है, आपको बताना है this perpendicular, जो ये perpendicular है
राइट, दिस परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट, आपको ये बताना है, राइट. विल डू इट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन. 7, what 7? Vansh, it's question number 6. See, अब जो ये आपको प्रूव करना है कि ये जो आपके पास परपेंडिकुलर है ना, ये सबसे स्मॉलर है, ठीक है. इसके लिए हम क्या करते हैं, सी ऐसे फिगर लेते हैं. दिस इज अ लाइन, दिस इज अ पॉइंट. एक इसमें हमने ले लिया परपेंडिकुलर, एक इसमें ले लिया हमने अदर लाइन. जब हम एक अदर लाइन के लिए प्रूव कर देंगे ना, वो सबके लिए अपने आप से ही प्रूव हो जाएगा, राइट. ओके, सो हमने अभी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसी एक्सरसाइज 7.4 का, दैट इज सेम हियर. हमें ये प्रूव करना है दिस इज शॉर्टेस्ट, तो हमें एक तरह से ये प्रूव करना है जो इसके ऑपोजिट है ये लॉन्गर है, राइट, लॉन्गेस्ट है. सो डेफिनेटली जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री एंगल होता है, उसके सामने वाला हो जाता है हाइपोटेन्यूज, और ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, राइट. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सी, so this is A, B and C, right? So use here angle sum property. Angle, if you want to write down given, then we have given a line L. AB is perpendicular on CL. ठीक है, on L you can say. And construction में क्या करेंगे हम? Construction में what we will do here, हम एक perpendicular ले लेंगे. गिवन में हमें एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है. कंस्ट्रक्शन में हम ये परपेंडिकुलर ले लेंगे. विल टेक दिस परपेंडिकुलर एंड आफ्टर दैट टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, AB इज लेस देन AC. हमें प्रूव करना है AB इज लेस देन AC, राइट. AB को AC से लेस प्रूफ करने के लिए हम ये भी तो प्रूफ कर सॉरी AB को AC से लेस प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 degree, same as the first question. ठीक है. C, अब जो आपके पास एंगल B है वो क्या है, 90 डिग्री. सो 90 डिग्री प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 minus 90, right? Angle A plus C is equal to 90 डिग्री. अब जब एंगल A और एंगल C का सम 90 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल C 90 से कम होगा, राइट. दिस इंप्लाइज एंगल C इज लेस देन 90 डिग्री. और 90 डिग्री किसके इक्वल है, B के. तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल C इज लेस देन एंगल B, है ना. अब जब एंगल C B से लेस है, तो एंगल C का जो ऑपोजिट साइड है, एंगल C की ऑपोजिट साइड कौन सी है, AB, वो लेस हो जाएगी B की ऑपोजिट साइड AC से, राइट. यही हमें प्रूव करना था, दैट AB इज द स्मॉलेस्ट साइड. जब वो AC के लिए स्मॉलर है, तो हम ऐसी कितनी भी यहाँ पर साइड्स ले लें, कितनी भी ले लें, और उन सब के लिए भी सेम रिजल्ट आएगा, दैट AB विल बी द स्मॉलेस्ट साइड, right? So the perpendicular will be the smallest side. Any query here? Quickly tell me, because there was a query of Ruhani that she wants to understand example 8 and we are having 5 minutes only, so let's try it then. Yes, Yash. Okay, I repeat the question again, then we move to the next question. Himanshu and Yash, you want to get this question repeat again, please quickly send the message. Himanshu and Yash,
I didn't get you. मुझ Okay, Khushi. Yes, 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 yes. Okay, then see what we have given here. Okay, okay, then see what we have. What is the question here? Show that of all line segments drawn from a point, given point. इस एक point से अगर हम line segments लेते हैं, not on it, मतलब अदर सामने कहीं और लेनी है आपको, ठीक है? ऐसे आप line segments लेते हो, right? तो आपको बताना है the perpendicular line segment is the shortest. इसमें से जो perpendicular मतलब जो 90 बना रहा होगा, that will be the shortest. आपको ये बताना है, ठीक है? आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप बाकी से कंपेयर करें, सब हाइपोटेन्यूज बनेंगे और ये एक परपेंडिकुलर होगा, है ना? राइट? सो जितने भी लाइन सेगमेंट ले लो, हम एक के लिए प्रूफ कर देंगे, ठीक है? वी आई हैव टेकन हियर अ लाइन सेगमेंट, अ पॉइंट, एक परपेंडिकुलर ले लिया, राइट? और एक हमने अलग साइड ले ली, राइट? आपको प्रूफ करना है दिस परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट. ओके, दिस परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट. देन हम ये भी तो प्रूफ कर सकते हैं, इफ आई टेक दिस एज ए बी सी. ओके, तो ए सी को हमें ग्रेटर प्रूफ करना है ए बी से. ए बी को शॉर्टेस्ट प्रूफ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए सी को ग्रेटर प्रूफ कर देते हैं, तो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा. अगर ए बी ए सी से स्मॉलर हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल बी स्मॉलर फॉर ऑल अदर लाइन सेगमेंट्स, राइट? तो इसके लिए हमने ये ट्राइंगल ली, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी. इफ द क्वेश्चन इज क्लियर देन विल मूव टू द नेक्स्ट, क्योंकि आंसर इज नॉट डिफिकल्ट, सिर्फ क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा आपको. सो आई एम जस्ट आस्किंग what is is there any difficulty in the question? AB we are to prove is the smallest, AC is given, uh, AC is other line segment. Okay, can we move to the answer then? ठीक है, हमारे पास गिवन है एक पॉइंट जिससे हमने एक लिया परपेंडिकुलर, एक लिया हमने अदर लाइन. हमें प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर है वो अदर लाइन से स्मॉलर होगा. यस पूर्ति, अब आई आवाज पूर्ति? पूर्ति, आई थिंक देयर विल बी नेटवर्क प्रॉब्लम. पूर्ति, okay, so AB is the smallest and not clear. Okay, then now not clear. Clear now? Okay, thank you. So let's repeat the question again. AB को शॉर्टेस्ट प्रूफ करना है, AC को लॉन्गर प्रूफ करना है. एक हमने लिया परपेंडिकुलर, एक हमने ली अदर लाइन, ठीक है? एक हमने ली अदर लाइन, एक हमने लिया परपेंडिकुलर, ठीक है? सो हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट है, अदर लाइन लॉन्गर है, ठीक है? तो इस ट्राइंगल में हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी is equal to 180 degree, right? So B is given 90 degree, so we can put here 90 degree plus angle A plus angle C is equal to 180 degree. 90 will be subtracted other side, angle A plus angle C is equal to 180 minus 90 is equal to 90. A प्लस सी 90 है तो डेफिनेटली C जो है वो स्मॉलर होगा 90 से, ठीक है? C अगर 90 से स्मॉलर है दैट मीन C B से स्मॉलर है, एंगल C इज लेस देन एंगल B, ठीक है? C का ऑपोजिट साइड AB लेस देन B की ऑपोजिट साइड